Dear friends, today we will going to do theories of international trade, a first chapter under the unit of international trade, macroeconomics for CA Foundation. थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड मेरे को ये बताता है, इसका जो थ्योरीज का क्रक्स है, जो एसेंस है, कि व्हाई अ कंट्रीज एंगेज इन एन इंटरनेशनल ट्रेड और इज इट बेनिफिशियल टू एंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड even if we can manufacture all the things in a country, still are is it a beneficial to do international trade? मेरी सारी की सारी जो थ्योरीज है वो यही बताती है. However, we do import many things which can be produced or are being produced within the country. Why do we do so, or rather, is it beneficial to engage in an international trade? Means different theories have been developed to explain this concept why countries engage in an international trade. So let's start. The first theory is called the mercantilist view of international trade. ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बोलती है a country become a national power when it's having the large quantity of exports over imports. It means to achieve the national power. In a word, a country should go for the international trade where it should do more exports over the imports. This theory proposed that export over the import is essential to accumulate wealth, to have favorable balance of payment and trade, and to still relevant in today's, and this theory is still relevant in today's economy. मीन्स ये थ्योरी सिंपल बोलती है कि भाई एक कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ओवर इम्पोर्ट, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस a country will have a more quantity of a export surplus, and this will give a more power to their country. This is the view of this theory. Now comes the theory of absolute advantage. This theory was given by Adam Smith, who is also called the father of economics. ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल. वर्ड लिख रहा है म्यूचुअली बेनिफिशियल. If a one country could produce one commodity at absolute advantage over the other commodity, another country couldn't produce another commodity at an absolute advantage over the first. मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ. एक्स कंट्री है. एक्स कंट्री में 1 hour of labor can produce 3 kg of steel and 2 shirts. Y country में 1 hour of labor can produce 2 kg of steel and 3 shirts. Now the productivity of labor in X country is more in manufacturing steel, and the productivity of labor in Y country is more in manufacturing t-shirts. Hence, according to this absolute advantage theory, country X should produce more of steel, country Y should produce more of shirts, and then they do international trade. X will export steel and X will import shirts. तो दिस थ्योरी की थ्योरी क्या बोल रही है कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज रिफर्स टू द country to produce greater quantity of goods using the same amount of resources. तो ये चीज बोल रही है एक्स कि यहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटी इज मोर इन स्टील, तो एक्स कंट्री विल प्रोड्यूस मोर ऑफ स्टील, वाई विल प्रोड्यूस मोर ऑफ शर्ट्स, एंड दे विल एंगेज इन अ इंटरनेशनल ट्रेड. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, इसका एमसीक्यू भी बन सकता है. Absolute advantage is determined by simple comparison of labor productivity. वही मैंने आपको भी एग्जांपल में समझाया. अब इस थ्योरी से क्या निकल के आता है? एक दूसरा पॉइंट निकल के आता है. Is it possible for nation to have no absolute advantage in anything? Means अगर मैं ये चीज को यहाँ पे ये ले लेता, ये भी 2 शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है. It means country X has an absolute advantage
अब दो शर्ट की जगह लेट से एक शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है. नाउ कंट्री एक्स हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज बोथ इन प्रोडक्शन ऑफ स्टील एज वेल एज शर्ट्स. इन दिस सिनेरियो, as per theory of absolute advantage, there will not be any international trade. ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो ये थ्योरी हमारे को जो बता रही है वो यही बता रही है कि दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड कब होगा, जब दोनों कंट्रीज में किसी भी एक चीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है ओवर दी अदर कमोडिटी. अदर वो नहीं है तो ये थ्योरी बोल रही है देयर विल नॉट बी एनी इंटरनेशनल ट्रेड. तो इसके अंदर एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से ये आ सकता है ये थ्योरी किसने डेवलप करी. इस थ्योरी का बेसिस क्या है, कंपैरिजन ऑफ द लेबर प्रोडक्टिविटी. और इस थ्योरी के ऊपर आपको इस तरह से न्यूमेरिकल भी आ सकता है. मींस अगर मैं इसको यहाँ पे रब कर दूं तो न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, यहाँ पे ये दो शर्ट्स बना रही है, ये तीन शर्ट्स बना रही है. तो क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है कि एक्स कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस कमोडिटी में, स्टील में या शर्ट्स में. दिस इज द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. ये एजम्पशंस है, दे आर नॉट सो सिग्निफिकेंट, आई एम नॉट टेकिंग अप राइट नाउ. आप पढ़ेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा. नाउ कम्स देन द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. Theory of comparative advantage was given by the डेविड रिकार्डो. ये भी एक एमसीक्यू आपका इस पे बन सकता है. इन्होंने क्या बोला, ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड was driven by comparative rather than absolute advantage, absolute cost of producing the goods. And what is the comparative advantage? Exporting products in which it is absolute advantage was greatest and importing product in which absolute advantage was comparatively less. अब ये जो चीज यहाँ पे बोली गई है, क्या बोली गई है, जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या हो रहा है कि हम दो कंट्रीज के बीच में इंस्टेड ऑफ गोइंग for absolute advantage alone we will go for comparative advantage. जिस कंट्री में एक कमोडिटी में उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज ज़्यादा है वो उसको एक्सपोर्ट करेगी और उसको दूसरी कमोडिटी को इंपोर्ट करेगी जिसमें उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज कम है. ये यहाँ पे बुक में आपके एग्जांपल दे रखी है, इसको मैं टेबुलर फॉर्म में ड्राफ्ट करता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कंट्री ए 1 hour ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस आइदर 3 kilograms ऑफ स्टील और 2 shirts. मीन्स कंट्री ए का हमने यहाँ पे लिखा कि एक लेबर 1 hour ऑफ लेबर कैन आइदर प्रोड्यूस 3 kg ऑफ स्टील और 2 नंबर ऑफ शर्ट्स. ये कंट्री ए का 1 hour ऑफ लेबर की प्रोडक्टिविटी हो गई. कंट्री बी क्या बोल रहा है, 1 hour ऑफ लेबर कैन प्रोड्यूस आइदर 1 kilogram ऑफ स्टील और 1 शर्ट. मैंने यहाँ पे ये लिख दी. अगर हम अब थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज से जाए तो कंट्री ए हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टील एंड शर्ट्स. 1 hour ऑफ लेबर 3 kg ऑफ स्टील प्रोड्यूस कर रहा है कंट्री ए में, जो कंट्री बी में सिर्फ 2 kg है. एक आवर ऑफ लेबर यहाँ पे क्या प्रोड्यूस कर रहा है आपका 2 शर्ट्स कंट्री ए में और कंट्री बी में वो कितनी शर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, 1 शर्ट. इसका मतलब कंट्री ए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टील एज वेल एज शर्ट्स. बट यहाँ पे एक जो चीज आ रही है, इस लाइन को मैं रब करता हूँ, थोड़ी मुझे स्पेस मिलेगी.
यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कंपैरेटिव एडवांटेज निकालना है। वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज से जाए तो बी कंट्री विल नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बिकॉज कंट्री ए हैज अ मोर एडवांटेज। अब हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, कंट्री ए में जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है, लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो स्टील के लिए कितनी है, मैं वर्ड लिखता हूँ। लेबर की प्रोडक्टिविटी स्टील के लिए इन कंट्री ए इट्स अ 3 टाइम्स ऑफ बी, और शर्ट्स के लिए लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है कंट्री ए में, 2 टाइम्स ऑफ बी। इसका मतलब इन अ कंट्री ए, द कंट्री ए हैज मोर कंपेरेटिव एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ स्टील। अगर हम एक एग्जांपल ऐसे लेके चलते, कंट्री ए कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, कंट्री बी कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, अब क्या होगा, कंट्री ए को हम मान के चलते हैं, कंट्री ए को रिक्वायरमेंट है किस चीज की, स्टील की। एक मिनट में एग्जांपल ठीक करता हूँ। कंट्री बी को रिक्वायरमेंट है स्टील की, समझाने के लिए बताता हूँ, और कंट्री ए की रिक्वायरमेंट है किस चीज की, शर्ट्स की। ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हाट विल हैपन, कंट्री ए स्टील प्रोड्यूस करेगी और वो किसको दे देगी, कंट्री बी को दे देगी। कंट्री ए खुद शर्ट प्रोड्यूस करेगी, अपने पास रख रही है। इन दिस वे देर इज एन इंटरनेशनल ट्रेड। बट कंपेरेटिव एडवांटेज क्या बोलता है मैं आपको समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मुझे स्पेस मिल गई, या ऊपर ही लेता हूँ मैं, आपको यहाँ से जल्दी समझ में आएगा। अभी क्या हो रहा है, जब कंट्री बी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ये मैं रब करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ। जब कंट्री बी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही तो पूरी वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कितनी हो रही है, टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 3 kg ऑफ स्टील एंड 2 शर्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। अब हम आते हैं किस चीज के ऊपर, कंपेरेटिव एडवांटेज में। अब हम कंपेरेटिव एडवांटेज में क्या करते हैं, बी डिसाइड करता है कि भाई मैं स्टील नहीं बनाऊंगा, मैं 2 आवर्स को यूज करूंगा किस चीज को बनाने में, 2 शर्ट्स बनाने में। इसका मतलब बी ने क्या करा, बी ने अपनी 2 आवर्स ऑफ लेबर कहाँ डिवोट कर दी, 2 शर्ट्स बनाने में। अब ए का कंपेरेटिव एडवांटेज किस चीज में है, ए का कंपेरेटिव एडवांटेज स्टील में है। ए ने क्या करा, उसने, बी ने 2 शर्ट्स बनाई और बी ने बोला कि मैं क्या करूंगा, नेल स्टील बनाऊंगा। बी ने 2 के 2 आवर्स किस चीज में प्रोड्यूस कर दिए, 6 किलो स्टील बनाने में, और उसने क्या करा, नील शर्ट्स बनाई। अब आप देखिए ए की रिक्वायरमेंट क्या है, ए की रिक्वायरमेंट शर्ट्स की है, तो बी क्या करेगा, बी ए को 2 शर्ट्स दे देगा। और बी की रिक्वायरमेंट स्टील की थी, वो भी 3 किलो की थी, तो जो ए कंट्री है वो बी कंट्री को 3 किलो स्टील दे देगी। बट उसके बाद भी ए कंट्री के पास 3 किलो स्टील बच रहा है। एक बार दोबारा से समराइज करता हूं मैं आपको, अगर कंपेरेटिव एडवांटेज को हम इग्नोर कर रहे थे तो व्हाट वाज हैपनिंग, पूरे वर्ल्ड में 3 किलो स्टील प्रोड्यूस हो रहा था, 2 शर्ट्स प्रोड्यूस हो रही थी, बिकॉज बी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज कुछ नहीं था। बट बाय वर्च्यू ऑफ दिस कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या हुआ, बी ने 2 आवर ऑफ लेबर्स डाइवर्ट कर दिए कहाँ पे, 2 शर्ट्स बनाने में, और उसने बोला हम कुछ भी स्टील नहीं बनाएंगे। ए ने 2 आवर ऑफ लेबर डाइवर्ट कर दिए स्टील बनाने में, 6 किलो स्टील, और नील शर्ट्स बनी। अब आप देखेंगे जहां पहले 3 किलो स्टील और 2 शर्ट्स बन रही थी, अब 6 किलो स्टील और 2 शर्ट्स बन रही है। इसका मतलब एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूं।
द एक्स्ट्रा किलो, एक मिनट आपको यहाँ दिखाता हूं मैं कहां पे एक लाइन आ रही थी। द एक्स्ट्रा किलोग्राम ऑफ स्टील इज अ मेजर ऑफ द गेन फ्रॉम ट्रेड। तो यहाँ पे जो 3 किलोग्राम ऑफ स्टील एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है बाय वर्च्यू ऑफ दिस कंपेरेटिव एडवांटेज, दिस इज अ गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो रिकार्डो की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, वो यही बोलता है कि एक कंट्री को वो चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिसमें उसका ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और उसको इंपोर्ट क्या करना चाहिए जिसका उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज कम है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दिस देयर विल बी the more amount of the more amount of production in an word, and that is called theory of comparative advantage। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे क्लटर हुआ है, आपको समझ में आया होगा। मैं आपको दोबारा एक बार स्पीडली रिकॉल कराता हूँ कि यहाँ पे स्टील जो है, ए की लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है, 3 किलो स्टील बनाने की या 2 शर्ट्स बनाने की। बी कंट्री में लेबर प्रोडक्टिविटी कितनी है, 2 किलो स्टील बनाने की, 1 शर्ट बनाने की। अब इस प्रोसेस में ए के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अब हमने माना बी कंट्री की रिक्वायरमेंट किसकी है, स्टील की, और ए कंट्री की रिक्वायरमेंट है शर्ट की। तो ए कंट्री ने दोनों चीजें प्रोड्यूस करी, उसने स्टील बी को दे दिया और शर्ट्स खुद यूज कर ली। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, जब बी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, 3 किलो स्टील और 2 शर्ट्स बन रही है। बट अगर हम कंपेरेटिव एडवांटेज पे जा रहे हैं, बी अपने पूरे के पूरे 2 आवर्स ऑफ लेबर कहाँ पे यूज कर रहा है, 2 शर्ट्स बनाने में। ए ने 2 आवर ऑफ लेबर यूज कर लिया 6 किलो शर्ट बनाने, 6 किलो स्टील बनाने में। तो आपने क्या देखा, जो चीज पहले 3 किलो स्टील और 2 शर्ट बन रही थी, दैट प्रोडक्शन हैज बीन इंक्रीज एट अ वर्ल्ड लेवल फ्रॉम 6 kg of steel to 3 kg of steel to 6 kg of steel। दिस इज अ थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज। एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से यही आएगा, ये थ्योरी किसने डिस्कवर करी, इस पे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, और इसके ऊपर बस यही चीज बनेगी। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, ये सब मैंने आपको समझा ही दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, हेक्सर ओइलिंग थ्योरी ऑफ ट्रेड। इन्होंने क्या बोला, डिफरेंस इन कंपैरेटिव एडवांटेज में अराइज फॉर सेवरल रीजन। इसका मतलब इस थ्योरी ने एक ये चीज बोली है कि जो कंपैरेटिव एडवांटेज है, मींस यहाँ पे लेबर की प्रोडक्टिविटी एक कंट्री में ज्यादा क्यों है एज कंपेयर टू बी कंट्री। जो हेक्सर ऑयलिंग की थ्योरी है, उन लोगों ने इसका रीजन दिया। उन्होंने क्या बोला कि they identify the role of labor and capital, so called factor endowment as the determinants of advantage। it means उन्होंने बोला कि जो कंपेरेटिव एडवांटेज एक कंट्री को मिल रहा है, इट मे बी ड्यू टू द वर्ड फैक्टर एंडोमेंट। हो सकता है जैसे हम यहाँ पे बात करें, एक कंट्री में लेबर आर मोर इंटेलिजेंट एंड they have more capital, they have more machines, hence the labor productivity is more in a country A। hence हेक्सर ओइलिंग की थ्योरी ने कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी का बेसिस दिया है कि व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन कंपैरेटिव एडवांटेज, और उन्होंने उस चीज को बोला है फैक्टर एंडोमेंट। इसका मतलब उन्होंने नेट में यहाँ पे क्या बोला है कि कंट्रीज well endowed with the capital should export capital intensive product, while those endowed with the labor should export labor intensive products। मीन्स उन्होंने फैक्टर एंडोमेंट के बेसिस पे उन्होंने बोला है कि भाई जिस कंट्री में कैपिटल ज्यादा है, मीन्स मशीन्स फैक्ट्री ज्यादा है, दे शुड प्रोड्यूस दैट गुड्स विच रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ मशीन, दे शुड एक्सपोर्ट दैट अमाउंट ऑफ गुड्स। और जिस कंट्री में लेबर ज्यादा है, दे शुड प्रोड्यूस दैट गुड्स विच रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ लेबर एंड एक्सपोर्ट दिस लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स। ये हेक्सर ओइलिंग की थ्योरी ऑफ ट्रेड है। अब इन दोनों की थ्योरी ऑफ ट्रेड, इस पर बोला गया डिफरेंस। यहाँ पे ये डिफरेंस तो आपको आएंगे नहीं, इस डिफरेंस के बेसिस पे आपको एमसीक्यू आ सकती है।
theory of comparative cost, that is a comparative advantage, और modern theory ये जो हेक्सर होयलिन की थ्योरी है. The basis is the difference between the country is the comparative cost. हमने जो ऊपर डिस्कस करा था वो हमने करा था 1 आवर ऑफ लेबर. 1 आवर ऑफ लेबर अगर हम इसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर दे तो हम क्या बोलेंगे कि लेबर कॉस्ट फॉर 1 आवर. तो हमने लेबर कॉस्ट ऑफ 1 आवर के बेसिस के ऊपर कंपैरेटिव एडवांटेज निकाला था. Modern theory explain the causes of difference in the comparative cost, and the difference reason is a factor endowment. Comparative cost theory is based on the labor theory value, labor productivity value, और based on the money cost. Money cost का मतलब यहाँ पे ये टोटल में बात कर रहे हैं कि कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स बनाने में अगर सस्ता पड़ रहा है तो कंट्री को वो यूनिट बनाने चाहिए, और दूसरी कंट्री को अगर लेबर इंटेंसिव चीज़ें बनानी सस्ती पड़ रही है तो वो बनानी चाहिए. यहाँ सिर्फ थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट में फोकस सिर्फ लेबर थ्योरी पे था या मनी कॉस्ट पे. सेम चीज को लेबर एज द सोल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, हियर मॉडर्न थ्योरी में लेबर एंड कैपिटल एज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बाकी मैंने दिए नहीं, कुछ रेलिवेंट नहीं है. डू नॉट टेक इनटू अकाउंट फैक्टर प्राइस डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर की बात कर रहे थे लेबर की. कंसिडर द फैक्टर प्राइस डिफरेंस एज अ मेन कॉज ऑफ कमोडिटी प्राइस डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे हम दो फैक्टर की बात कर रहे हैं, कैपिटल की और लेबर की. होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी. नेक्स्ट पे आते हैं. न्यू इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, इसको बोला गया है न्यू ट्रेड थ्योरी. इसका जो एक्रोनिम आ रहा है एनटीटी आ रहा है. यहाँ पे एक लाइन बोली गई है, न्यू थ्योरी डज नॉट ऑल्टर द फंडामेंटल दैट ट्रेड इज अ पॉजिटिव सम गेम. इस वर्ड का क्या मतलब है? पॉजिटिव सम गेम का मतलब मैं बताऊं, ऊपर कंपैरेटिव कॉस्ट में जब हम पहले बात कर रहे थे तो वर्ड में ए प्रोड्यूस कर रहा था 3 kg ऑफ स्टील और 2 शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था. बट जब इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट हुआ, ए और बी दोनों ने प्रोडक्शन स्टार्ट करी, तो टोटल जो प्रोडक्शन निकल के कितनी आई? 6 kg ऑफ स्टील एंड 2 shirts. Hence, it's a positive sum game in the sense the worldwide production of commodity increase. The new trade theory further adds to the positive sum. वो और क्या बोलती है कि international trade shall be done, it enlarge the market. International trade increase competition and allows greater exploitation of economies of scale, both of which represents gain over and above due to comparative advantage. Means अगर ये जो थ्योरी बोलने जा रही है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करना चाहिए, बिकॉज बाय डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड द competition increases and which reduce the cost of production, which reduce the cost to the consumer, and the increased production allows greater exploitation of economies of scale, जिससे मेरा cost of production भी कम होगा. Hence जो एंटिटी है उसने जो कंपैरेटिव एडवांटेज है उसके ऊपर फर्दर 2 पॉइंट दिए कि बाय डूइंग इंटरनेशनल और ट्रेड देयर इंक्रीज द कंपटीशन, देयर इंक्रीज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बोथ बेनिफिट्स द प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर. ये यहाँ पे इस थ्योरी में बोला गया. ये सब चीजें मैंने स्टडी करी थी, कुछ ऐसा मुझे इंपॉर्टेंट दिखा नहीं, इसको मैं टेकअप नहीं कर रहा हूं. अब एंटिटी में जो बोला गया द 2 न्यू कॉन्सेप्ट गिव एडवांटेज टू द कंट्रीज, क्या हो रहा है? एक हमने पढ़ लिया इकोनॉमीज ऑफ स्केल. एक जो चीज आ रही है वो क्या कहना चाह रहा है? नेटवर्क इफेक्ट्स. वो क्या बोलता है? नेटवर्क इफेक्ट रिफर्स टू द वे वन पर्सन value of good or service is affected by the value of that good service to others. समझाता हूँ मैंने येलो पॉइंट से. The value of product or service is enhanced
as the number of individual using it increases, and this is referred to as the bandwagon effect. A good example, for example, is a WhatsApp. Now that everybody had started using WhatsApp, so what happened? The value of the WhatsApp enhanced as the number of individual using it increases. यहाँ पे इसको बोला गया नेटवर्क इफेक्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं एंटिटी थ्योरी के हिसाब से, अगर इंटरनेशनल ट्रेड होगा, द पीपल विल स्टार्ट यूजिंग द कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज, the value of which will increase for the other consumers, and that is called the bandwagon effect. तो एंटिटी की थ्योरी ने दो नए पॉइंट क्या डाले, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और एक नेटवर्क इफेक्ट, ये हमको समझाएंगे। अब इस थ्योरी, इस चैप्टर में कुछ नहीं है, मैं एमसीक्यूज आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो समझ में आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड? मीन्स इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में जो डिफरेंस जो होता है वो कौन से ऑप्शन है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रही है? ट्रांजेक्शन इज एन मल्टीपल करेंसी इज अ डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो डिफरेंस है, मल्टीपल करेंसी आती है। होमोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स एंड करेंसी, this is not in case of a international trade. Means homogeneity of customer मतलब similarity of the customers and currency is only in case of the internal trade, and this is not in the case of the international trade. तो मुझे ये आंसर सही दिख रहा है। डिफरेंस इन लीगल सिस्टम ऑब्वियसली दोनों कंट्री में आता है, नन ऑफ तो है ही नहीं, इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी। आगे पढ़ते, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज स्टेट्स दैट नेशन वेल्थ एंड पावर आर बेस्ट सर्व बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट एंड डिक्रीजिंग इंपोर्ट्स। नहीं, ये तो मर्केंटलिस्ट थ्योरी है। नेशन कैन इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वेलबींग by specialize in the production of goods they produce more efficiently than anyone else, ये ठीक लग रहा है। The value or price of commodity depends exclusively on the amount of labor going into production and therefore factor price। factor price तो हमारी क्या कहते हैं उसके अंदर आती है फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी में। The difference in absolute advantage explain difference in factor endowment, ये भी नहीं है। Hence the best answer is this, nation can increase their economic well-being by specializing in the production of goods they produce more efficiently than anybody else. Which of the following theories advocates that country should produce those goods for which it has the greatest relative advantage? यहाँ पे बात कर रहा है रिलेटिव कंपेरेटिव एडवांटेज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वो तीनों ही नहीं है, तो देन आंसर इज ऑप्शन डी। Which of the following holds that country can increase its wealth by encouraging exports and discouraging imports? That's a mercantilism. Given the number of labor hours to produce cloth and grain in two countries, which country should produce the grain? ये यहाँ पे लेबर आवर्स गिवन है, दिस इज द लेबर आवर्स, और क्या वर्ड लिखा है, लेबर कॉस्ट। तो अगर हम 1 रुपए एक लेबर आवर के मान ले तो ये लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। अब यहाँ पे कह रहा है गिवन द लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लॉथ एंड ग्रेन, विच कंट्री शुड प्रोड्यूस द ग्रेन। अब आप देखते हैं ग्रेन के केस में कंट्री ए में कितनी कॉस्ट लग रही है, 80 रुपए की बात करते हैं, अगर रुपीज में बात करें 80 लेबर आवर, और कंट्री बी में कितने लग रहे हैं, 40। इसका मतलब कंट्री बी हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग द ग्रेन्स, हेंस द कंट्री बी शुड प्रोड्यूस द ग्रेन। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, ट्रेड इज अ जीरो सम गेम। बिल्कुल गलत है, बिकॉज थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज बोलती है इट्स अ पॉजिटिव सम गेम। ट्रेड इज नॉट अ zero sum game, so that net change in wealth or benefit among the participants is a positive. This seems okay. आगे पढ़ते, nothing definite can be said about gains from trade. No,
gain from date upon the factor endowment and utilization. Theory of comparative advantage factor endowment की बात ही नहीं करती because it's based on the theory of labor value. Hence the B answer is the correct. Trade is not a zero sum game and there is a net change in the wealth among the participants and that net change is a positive, जो हमने स्टील और शड वाला एग्जांपल लिया था. आगे पढ़ते हैं. Given the number of labor hours to produce wheat and rice in two countries and that countries specialize and engage in a trade at a relative price of 1:1, what will be the gain of country X? 1:1 का मतलब यहाँ पे हम समझ रहे हैं जिसको जितनी कॉस्ट पड़ रही है वो उतने का उसको एक्सपोर्ट कर रहा है. अब कंट्री एक्स क्या कर रही है? कंट्री एक्स में अगर हम देखें, कंट्री एक्स में जो लेबर कॉस्ट पड़ रही है वो वीट की कितनी पड़ रही है? 10 आवर्स. तो कंट्री एक्स में वीट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? कॉस्ट बोल दे या लेबर आवर्स बोल दे, 10 लेबर आवर्स पड़ रही है. और राइस की 20 लेबर आवर्स पड़ रही है. कंट्री वाई में वीट की क्या पड़ रही है? 20 लेबर आवर्स और राइस की पड़ रही है 10 लेबर. हेंस कंट्री एक्स के लिए क्या बेनिफिशियल होगा कि कंट्री एक्स वीट तो खुद प्रोड्यूस करे एंड राइस जो है इट गेट्स इंपोर्टेड फ्रॉम कंट्री वाई. इन दिस प्रोसेस कंट्री एक्स जो है वो आपने 10 लेबर आवर्स सेव कर लेगी क्योंकि अभी उसको वाई राइस प्रोड्यूस करने में 20 लेबर आवर्स लग रहे हैं और वीट में 10 लग रहे हैं. तो अगर वो राइस कंट्री वाई से इंपोर्ट करेगी तो व्हाट विल हैपन? इट विल सेव दी 10 लेबर आवर्स. हेंस द आंसर इज बी. ये समझाता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Assume India and Bangladesh have a unit labor requirement for producing tables and mats shows in a table below. यहाँ पे क्या आ रहा है? लेबर आवर्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ टेबल्स एंड मैट्स. मैंने इस डाटा को चेंज कर दिया यूनिट पर लेबर आवर बिकॉज हम लेबर की प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिव एडवांटेज में चेक करते हैं. तो यहाँ पे एक टेबल को प्रोड्यूस करने में 3 लेबर आवर लग रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या करा? 1/3 करा, यहाँ 1/8 करा, यहाँ 1/2 करा, यहाँ 1/1 करा. तो मैंने क्या निकाला कि एक लेबर इंडिया में 0.33 टेबल बना रही है, बांग्लादेश में 0.125 टेबल बना रही है. इंडिया में एक लेबर आर 0.5 मैट बना रही है, बांग्लादेश में एक लेबर आर 1 बना रही है. अब नाउ लेट्स गो थ्रू दी ऑप्शंस. बांग्लादेश हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन मैट्स. लेट्स चेक. बांग्लादेश में एक लेबर आर 1 मैट बना रही है, इंडिया में एक लेबर आर 0.5 मैट बना रही है. यस, बांग्लादेश हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन मैट. इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स. इंडिया में एक लेबर आर 0.33 टेबल्स बना रही है, बांग्लादेश में 0.125 बना रही है. यस, इंडिया हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टेबल. बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैट्स. अब आप देखेंगे बांग्लादेश में जो मैट्स बन रहे हैं वो एक लेबर बांग्लादेश में ज्यादा मैट बना रही है. तो कंपैरेटिव एडवांटेज को हम कंपेयर करें तो बांग्लादेश का कंपैरेटिव एडवांटेज इंडिया से हो रहा है. बट अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज की देखें तो उस केस में भी क्या हो रहा है? बांग्लादेश हैज अ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ मैट. ये भी सही है. हेंस द आंसर इज ऑल द अबव आर ट्रू. Comparative advantage refers to country ability to produce some goods or service at lowest possible cost compared to other countries. Country ability to produce some good service at a lower opportunity cost than other countries. यहाँ पे हम लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट की बात क्यों नहीं करते? बिकॉज सिर्फ हम लेबर थ्योरी देखते हैं, हम कॉस्ट पे जाते ही नहीं है. हम किसके ऊपर जाते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर. क्योंकि लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो हो गया वो तो कौन सी बात कर रहा है? एब्सोल्यूट एडवांटेज. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कंपैरिजन आ रहा है. हेंस द ऑप्शन इज बी.
रिकार्डो एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑन द बेसिस ऑफ द, अपन समझते हैं, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। तो यही एमसीक्यूज है। तो आप अगर इसमें देखेंगे यहाँ पे आपके इस एमसीक्यूज में दे हैव ट्राइड टू इवेल्युएट द क्वेश्चन ऑन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हेंस आपको ये समझ में आया होगा कैसे है, आपको ये थ्योरी समझ में आई होंगी। और इसमें हम बात कर रहे हैं, अगर ब्रीफली हम बात करें तो 3 थ्योरीज निकल के आ रही है, मतलब 4 थ्योरीज निकल के आ रही है। मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ये मैंने आपको समझाया था, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, एंड दैट द अदर थ्योरी हेक्सलर-ओयलिन थ्योरी सिंपली एक्सप्लेन द रीजन फॉर कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये और पांचवी आ रही है आपकी एंटिटी, दैट इज अ न्यू ट्रेड थ्योरी, जिसने कंपैरेटिव एडवांटेज को तो रिकॉग्नाइज करा है, बट उसने बोला है कि इंटरनेशनल ट्रेड से देयर इज अ इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड द नेटवर्क ऑफ इट। अब मैंने आपको इस चैप्टर में ये जो चीज है, सिंपल एडवांटेज, ये जो आ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, और आपके आ रहे हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ट्रेड, ये मैंने आपको भी डिस्कस नहीं करे बिकॉज दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप रीड करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये थ्योरीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू।